السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہوپ یو آل آر فائن. آج ہمارا لاسٹ لیکچر مین 4 لیکچر ہے ہمارا، اور یہ ہمارے انٹرویو کی کلاسز کا لاسٹ لیکچر ہے. تو پچھلے لیکچرز میں ہم نے بہت سارے انٹرویو کے کویشچن دیکھ لیے، مختلف دیکھ لیے، اکیڈمک کویشچن سب کچھ ہم نے دیکھ لیا. آج ہم کچھ ریمیننگ جو ہمارے پاس کویشچنس ہیں اس کو تھوڑا بہت دیکھ لیں گے کہ ہمارے پاس کون کون سے ہیں. دین کچھ میں آپ کو PDF فارم سینڈ کروں گی بیولوجی کے کویشچنس کی کہ کون سے امپورٹنٹ ہے یا پھر کون سے آپ لوگوں کو یاد رکھنے چاہیے. کچھ میں ابھی بھی ایکسپلین کروں گی. تو آتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف. تو فرسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس کہ آپ سے انٹرویو میں کچھ مختلف کویشچن ایموشنس کے ہوں گے، کسی ٹائپ کے، ہم نے جیسے پیچھے ایکسپلین کیا تھا کہ پوچھے جاتے ہیں. تو کچھ آپ کے میتھ کے کویشچن بھی ہوتے ہیں، زیادہ تر آج ہم میتھ کو بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس فرسٹ کویشچن ہے 8 ہارسز 6 گرلس اور 6 بوائز کتنے ہوئے. ٹھیک ہے، پچھلے بہت سارے کویشچن ہم نے سارے انگلش میں ہی دیکھے تھے، آج میں نے آپ کو ذرا اردو میں لکھ کر دے دیے تاکہ آپ سمجھ سکو. ٹھیک ہے، مین یہ تو ایزی ہوا کہ آپ جلدی سے کیلکولیٹ کر لو کہ 8 ہارسز ہیں، 6 گرلز ہیں، 6 بوائز کتنے ہیں. جتنے کیلکولیٹ سے آپ کو جو بھی آنسر آئے گا آپ نے بتا دیا. ٹھیک ہے، بعض اوقات وہ آپ سے ایسے بھی کرتے ہیں کہ آپ کو کہا جائے گا کہ آپ غلط بول رہے ہو. ٹھیک ہے، مین اگر آپ ٹھیک بھی ہو، بس آپ نے ایک آنسر دے دیا، چاہے وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، پھر آپ نے یہ نہیں کرنا کہ نہیں ایک منٹ سر میں ایک اور کویشچن کر لوں. نہیں، اس طرح نہیں کرنا. جو آپ نے آنسر دے دیا ہے آپ نے اس پر بالکل رہنا ہے اسی کویشچن پر کہ ہاں بس میرا آنسر ٹھیک ہے، کہ میں نے غلط نہیں دیا. ٹھیک ہے، وہ آپ کو کنفیوز کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو لگے کہ آپ نے غلط آنسر دے دیے تب بھی آپ کہیں کہ میرے اکارڈنگ یہ والا آنسر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، دین پھر ایسے بھی کویشچن کیا جا سکتا ہے کہ یہ جتنا آپ نے بتا دی ہے 8 ہارسز 6 گرلز اور 6 بوائز، تو ان کی ٹوٹل لیگ کتنی ہوئی. ٹھیک ہے، تو وہ ابھی آپ کیلکولیٹ کر لیں. دین اب کویشچن ہے کہ ان میں سے خوبصورت لیگ کس کی ہے. ٹھیک ہے، مین کہ ہارسز ہیں، گرلز ہیں، بوائز ہیں، کہ آپ کو کس کی لیگ اچھی لگے گی. تو بہت زیادہ کینڈیڈیٹ کیا کرتے ہیں کہ خود کو بہت زیادہ پازیٹیو رکھنے کے لیے، پیچھے بھی لیکچر میں نے بولا تھا کہ اگر آپ کو پازیٹیو رہنا ہے لیکن بہت زیادہ پازیٹیو آپ نے نہیں ہو جانا. ٹھیک ہے، نیچرل کے اکارڈنگ آپ نے جانا ہے. تو اگر ویسے آپ تو خود سوچو کہ ہارسز ہیں، گرلز ہیں، آپ خود گرلز ہو اور بوائز ہیں، تو آپ کو کس کی اچھی لگیں گی لیگ؟ اوبویسلی بوائز کی لگیں گی. بہت گرلز ہوں گی جو کہیں گی کہ نہیں بوائز کی ہمیں اچھی نہیں لگیں گی، لیکن جو نیچرلی پروسیس ہے وہ کیا ہوگا، آپ کو بوائز کی لیگ اچھی لگیں گی. تو آپ نے بہت زیادہ وہاں پر پازیٹیو نہیں ہونا، جو چیز ہے وہی بتانی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، دین کچھ کویشچن جو ہوں گے میتھ کے ہوں گے، لائک 0.006 کو ڈیوائڈ کرے 0.0006 پر. ٹھیک ہے، 0.009 کو ڈیوائڈ کرے 0.00009 پر. ٹھیک ہے، اس ٹائپ کے آپ کے کویشچن ہوں گے. دین اب کویشچن ہے کائیڈیازم کے فریم کا ایریا بتائیں یا پھر ٹیبل کا ایریا بتائیں. کچھ بھی وہ وہاں پر چیز موجود ہوتی ہے، آپ کو کہا جائے گا کہ آپ لوگ ایریا بتا دیں. ضروری نہیں کہ لازمی آپ سے پوچھے، آ سکتے ہیں یہ کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں. دین جو امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ زندگی میں کوئی پچھتاوا تو آپ کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ پچھتاوا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اپنے لیے سوٹ نہیں لیا تو آپ کو پچھتاوا ہو گیا، یا آپ سے کوئی بہت امپورٹنٹ چیز رہ گئی آپ کو پچھتاوا ہو گیا. یہ وہ پچھتاوا نہیں پوچھ رہے. یہ بہت ہی زندگی کا، یا پھر آپ لوگ ریلیشن شپ میں چلے جاؤ، یہ بہت ہی آگے ٹائپ کا آپ سے کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ کوئی پچھتاوا تو نہیں ہے آپ کا، آپ نے کچھ غلط کام تو نہیں کر دیا کیا نہیں. تو یہ اس ٹائپ کا آپ سے پوچھا جائے گا. تو اوبویسلی آپ نے بولنا ہے نو، ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے، ابھی ہماری زندگی میں کوئی ایسا ٹائپ نہیں آیا. ٹھیک ہے، دین آپ کے جو بایو کے کویشچن دیکھیں تو کچھ بونز کے نیم، ایئر کے بون ہو گئے، مختلف بون کے نیم بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آگے میں آپ کو ایکسپلین کروں گی. دین کویشچن ہے 2+2 اور ڈیوائڈ 2. یہ والا کویشچن زیادہ ٹیسٹ میں بھی آتا ہے. آئی تھنک سو کہ آپ لوگ کے ٹیسٹ میں بھی یہ کویشچن آیا ہوگا. کچھ اسی ٹائپ کے آپ کے میتھ کے کویشچن پوچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، دین پاکستان کے ساؤتھ ویسٹ میں کیا ہے. مین آپ کو ساری ڈائریکشن یاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کہ ساؤتھ میں کیا ہے، ویسٹ میں کیا ہے، نارتھ میں کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ساری یاد ہونی چاہیے. دین کہ انڈس ہائی وے کہاں پر ہے، آپ کو ہائی ویز وغیرہ سارے پتہ ہونے چاہیے.
जैसे हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको मुख्तलिफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के बताए थे, तो ज्यादातर लॉ ही पूछे जाते हैं, लाइक कुछ बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, पास्कल लॉ, विस्कोसिटी, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको उर्दू में भी बोला जा सकता है कि आप एक्सप्लेन करो, या फिर इंग्लिश में भी आपको बोला जा सकता है कि आप एक्सप्लेन कर लो, ठीक है। या तो स्टेटमेंट इनकी बता दें या फिर इनको एक्सप्लेन कर दें, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देन परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं कि 35% ऑफ क्या है 450, ठीक है, 22% ऑफ 90। एंड ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है टेस्ट में भी आपका शायद आया हो कि 90% ऑफ 90, ठीक है। 8 + 5 / 3, 9 - 4 × 3 / 5, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपने डेमेस रूल के अकॉर्डिंग करने हैं, ठीक है। मीन पहले डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लीकेशन करनी है, ठीक है, ऐड करना है और फिर सब्सट्रैक्शन करनी है। इस हिसाब से आपने क्वेश्चन को करना होगा। देन फिर आ जाते हैं आपके, जैसे मैंने करंट अफेयर की बात की थी, तो आपको अपने सारे करंट अफेयर याद होने चाहिए। लाइक प्रेसिडेंट आपका कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, आपके सीएम कौन से हैं प्रोविंस के, आपके मिनिस्टर्स कौन कौन से हैं, आपको सारे नाम याद होने चाहिए, ठीक है। आप एक पेज लें, आप उस पर सारे नेम लिखें और उसके अकॉर्डिंग एक अपना चार्ट सा बना लें, ठीक है। फिर पीएम मीन जो प्राइम मिनिस्टर नेम ऑफ नेबरिंग कंट्रीज क्या है, उनके भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। देन केपीके ओल्ड नेम क्या था हमारे पास, वो है NWFP, ठीक है। और फिर ये चेंज क्यों हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। मीन इस टाइप के क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। देन नेक्स्ट हम आए, तो मैंने आपको बोला था कि बायो के आज मैं बताऊंगी, तो आपने जो बायो का मतलब क्वेश्चंस करने हैं, बायो की तैयारी करनी है, वो आपने अपना जो FSC कोर्स है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, उनके जो सारे चैप्टर हैं, उन सारे चैप्टर के नाम आप अपने पास एक पेज पे लिख लें। देन हर चैप्टर में इम्पोर्टेंट मीन ये चैप्टर है किस हिसाब से, किस से बिलोंग कर रहा है, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। ज्यादातर FSC सेकेंड ईयर के बुक को आप देखें, उसमें जो फर्स्ट 3rd चैप्टर हो गया, 4th चैप्टर हो गया, इस सारे टाइप के आपने स्केलेटन वगैरह के जो चैप्टर है आपने वो अच्छे से करने हैं, ठीक है। देन ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करने हैं, लाइक नंबर ऑफ बोन कितनी है, नंबर ऑफ मसल्स कितने हैं, नंबर ऑफ किडनी कितनी है, नंबर ऑफ मिल्क टीथ, नंबर ऑफ रिब्स, नंबर ऑफ चैम्बर्स, लार्जेस्ट आर्टरी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, pH ऑफ ब्लड, ये चीज आपको लाजमी याद होनी चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन द स्पाइन, और ये वर्टिब्रेट और वर्टिब्रा ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, कितने वर्टिब्रा मौजूद है, नेक में कितने हैं, क्या है, सारे वर्टिब्रा आपको याद होने चाहिए। आई थिंक सो सेकेंड ईयर के 3rd चैप्टर में है, आपने वो करने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बोन इन मिडल ईयर, वही बात जो पीछे अभी बात बताई कि बोन आप लोग को याद होने चाहिए, मिडल ईयर में कितने हैं, फेस में कितने हैं, स्कल में कितने हैं, चेस्ट में कितने हैं, वही बात होगी, आपने 3rd चैप्टर को अच्छे से करना है, ठीक है। बाकी चैप्टर्स में भी आपने देखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें आपने उसमें देखनी है। नंबर ऑफ बोन इन ईच ह्यूमन मिडल ईयर, ठीक है। देन नंबर ऑफ मसल्स इन द ह्यूमन आर्म, ठीक है। अच्छा ये बॉन्ड देखें, मिडल एयर में बॉन्ड टोटल 6 है और ईच ह्यूमन मिडल एयर में अगर करे तो 3 है, ठीक है। नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन आर्म, नंबर ऑफ पम्प्स, लार्जेस्ट ऑर्गन, लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है इसके, लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, लिवर। स्मॉलेस्ट सेल जो हमारे पास सेल है वो है ब्लड सेल। बिगेस्ट सेल जो हमारे पास है वो एग सेल है और यूब, ठीक है। ये आपको याद रखना है। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, वो है हमारे पास क्या है, स्टेप्स, ठीक है। देन फर्स्ट ट्रांसप्लांटेड जो ऑर्गन है, मीन जो ट्रांसप्लांट हुआ था फर्स्ट टाइम पर, वो क्या है, हार्ट है। एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, 7 मीटर। एवरेज लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, 1.5 मीटर। एवरेज वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी जो हमारे पास जो एवरेज वेट है वो 2.6 kg होता है। मीन जो न्यू बॉर्न बेबी पैदा होते हैं उनका जो मीन वेट है वो 2.6 kg होता है, ठीक है। देन पल्स रेट इन 1 मिनट 32 टाइम्स। बॉडी टेम्परेचर जो हमारे पास ज्यादातर होता है वो 36.9 होता है, ठीक है, डिग्री।
36.9 मीन ज्यादातर लोग इसको अबाउट 37 बोलते हैं, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में हमारे पास क्या है 98.4, ठीक है। देन एवरेज ब्लड वॉल्यूम हमारे पास क्या है 4 to 5 लीटर्स। एवरेज लाइफ ऑफ आरबीसीज, ये चीजें भी आपको याद रखे होनी चाहिए कि एवरेज लाइफ ऑफ जो रेड ब्लड सेल है वो 120 दिन मीन 120 डेज है। प्रेगनेंसी पीरियड कितना है 280 डेज, ठीक है। नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन फूड जो है 33 है। नंबर ऑफ ये बोन्स आपको लाजमी याद होनी चाहिए। नंबर ऑफ बोन्स इन ईच रेस्ट जो है 8 है। नंबर ऑफ बोन्स इन हैंड 27। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है थायराइड है। लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन जो है हमारे पास स्प्लीन है, ठीक है। लार्जेस्ट सेल हमारे पास नर्व सेल एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो हमारे पास सेरिब्रम है, ठीक है। देन फिर लार्जेस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो हमारे पास है स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, फीमर, स्मॉलेस्ट बोन, मिडल एयर, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन सेल 20। अच्छा, ये आपको याद रखना है कि अगर आपसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछ लिया जाता है तो आपने 46 बताना है, और अगर आपसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेयर पूछे जाते हैं तो आपने 23 बताने हैं। ये नहीं कि आपसे पेयर पूछ ले तो आप 46 बता दो। पेयर मीन जो टुगेदर फॉर्म में है तो 23 पेयर्स होंगे, नहीं तो अगर एक एक सेपरेटली करे तो 46 होंगे, ठीक है। देन नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बॉर्न बेबी 300 या फिर ज्यादा 360 भी लिया जाता है, ठीक है। और लार्जेस्ट मसल जो है वर्टेक्स में ग्लूटेस मैक्सिमम है, मैक्सिमस, ठीक है। देन अब जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कुछ मोटो में आपको बता दूंगी, अगर आप लोगों ने कर ली है वेल एंड गुड, आज के लेक्चर में भी आपको बता दूंगी। देन जो रैंक है आपके पास आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के आपको आने चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपसे सारे पूछे जाए कि सारे रैंक बता दो। इस टाइप का भी हो सकता है कि आर्मी में कैप्टन, नेवी में किसके इक्वल होता है, या पीएफ में किसके इक्वल होता है, इस टाइप के आपको पता होने चाहिए, ठीक है। देन अगर आर्मी में बात करें तो फर्स्ट कमीशन की बात हो रही है, कमीशन ऑफिसर्स की, के फर्स्ट है सेकंड लेफ्टिनेंट, देन लेफ्टिनेंट, और जो एफएनएस का रैंक है वो लेफ्टिनेंट है, ठीक है। लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होता है। देन फिर आगे जाते हैं, क्या है हमारे पास कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट, ठीक है, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल एंड ब्रिगेडियर, और जो एफएनएस का है वो ब्रिगेडियर तक इनकी पोस्ट रैंक जाती रहती है, ठीक है। देन मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड लास्ट है जनरल, ठीक है। देन इसी टाइप के अगर हम पीएएफ में बात करें तो इसमें होता है फर्स्ट पायलट ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमांडर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल एंड एयर चीफ मार्शल, ठीक है। ये पीएएफ में ये वाले रैंक्स होते हैं, ठीक है। देन नेवी में बात करें तो मिडशिपमैन, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, ठीक है, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन। देखिए आप कैप्टन इसमें किस नंबर पर आ रहा है, ठीक है। अब ये नहीं कि नेवी में अगर कोई कैप्टन है तो वो आर्मी के कैप्टन के इक्वल नहीं होगा, उनसे हायर रैंक के हैं, ठीक है। कमांडर, रियर एडमायरल, वाइस एडमायरल और फिर एडमायरल, ठीक है। देन मोटो की बात करें तो पीएएफ के मोटो की अगर हम बात करें तो हमारे पास है सहरस्त के दरियास्त है बाल और परे मस्त। इसका मतलब कि चाहे दरिया हो या सहरा हो, सारे मेरे विंग्स के नीचे या फिर मेरे पर के नीचे हैं, ठीक है। इसके उर्दू का मतलब ये है, लेकिन आपने एग्जैक्टली ऐसे ही याद करना है जैसे लिखा हुआ है। देन आर्मी का है ईमान, तकवा, जिहाद फी सबिलिल्लाह। देन नेवी का हिम्मत का आलम, अलम का अल्लाह का करम, मौजों पर कदम। तो क्लास ये सारे हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें थी हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। आज का हमारा लास्ट लेक्चर था। होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको बहुत सारी चीजें आ गई होंगी, और आप एक और बात कि आपके क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा था वो मुझे हर लड़की ने बताना है, ठीक है। इस टाइप के जो हमारी और क्लासेस जा रही हैं एफएनएस की टेस्ट की तैयारी के लिए, उन गर्ल ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो आपसे भी
आई होप कि आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, चाहे जैसा भी एक्सपीरियंस है आपने बताना है कि क्लासेस कैसी हैं और आपका एक्सपीरियंस क्लासेस के दौरान कैसा रहा है. ठीक है, तो होप आपको सारी समझ आ गई होगी. कुछ भी क्वेश्चन हो आप लोग आज मुझसे पूछ सकते हैं देन. और आज लास्ट क्लास के बाद फिर आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा. थैंक यू. और साथ में फिर आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बायो के भेज देती हूँ. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.